Morning student, as you can see today I have used a different mode of teaching you, okay, through the laptop and giving you the notes instead of handmade notes. I have given you the this type of notes, and if you are actually liking it और आपको पसंद आता है कि ऐसे पढ़ना ज़्यादा बेटर है तो काइंडली राइट योर कमेंट सो दैट आई विल गो फॉर इट. If you are not liking it and you like the handmade notes, then I go for that. Okay, thank you students. Okay, let it start. We were doing the chapter number 10, government budget, lecture 6. Okay, so already we have done with the lecture 5. So what is budget deficit? The budget deficit क्या होता है? फर्स्टली अंडरस्टैंडिंग दिस थ्रू द गवर्नमेंट बजट, मैं आपको आपके तरीके से समझाऊंगी इसे. ठीक है, अब डेफिशिट वर्ड, जैसे सपोज हम अर्न कर रहे हैं, वी हैव अ इनकम. सपोज अ पर्सन इज हैविंग अ इनकम ऑफ 60,000 रुपीज़. ओके, सो 60,000 रुपीज़ में अगर उसके एक्सपेंडिचर जो हैं, ओके, अगर उसके खर्चे जो हैं, मतलब उसकी इनकम जो है दैट इज़ 60,000 रुपीज़ और उसके खर्चे एक्सीड कर जाएं उसकी इनकम से ज़्यादा, तो व्हाट वी कॉल इट, we call it deficit. Okay, suppose I have written over here the person is having income of 20,000 rupees. Fine, so income is 20,000 rupees and expenditure of a person is 22,000 rupees. Is it clear? So इसका मतलब है कि उसकी इनकम उसके एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो गया है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल इट, वी आर गोइंग टू कॉल इट डेफिशिएट. ओके, सो सेम एज इट इज़ गवर्नमेंट के साथ होता है. गवर्नमेंट के कई बार खर्चे जो हैं उनकी इनकम से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड बजट डेफिशिएट. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट द बजट. बजट में व्हाट वी आर कमिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. Okay, so one by one we are going to discuss it, and here today we are only discussing about the deficit word here. Okay, is it clear? तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है budget deficit जो है क्या होता है, let it understand it. It refers to situation when budget expenditure of the government are greater than budget receipt. Clear? जब गवर्नमेंट के खर्चे जो हैं उसकी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, अगेन आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल. सपोज गवर्नमेंट की इनकम जो है दैट इज द इनकम ऑफ अ गवर्नमेंट इज दैट इज 20 करोड़. ओके, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज 25 करोड़. Okay, so it means this is called the deficit of the government. Okay, let it see what is the formula for the same. Budget deficit is equal to total expenditure. अब बच्चे आपको ये माइंड में रखना है कि total expenditure is equal to revenue expenditure plus capital expenditure minus total receipt, revenue receipts plus capital receipt. Okay, in previous 5 lecture we have already discussed what is revenue expenditure, capital expenditure, हमने सारा डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, तो बजट डेफिशिट क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट. तो टोटल एक्सपेंडिचर मान लीजिए 25 एंड टोटल रिसिप्ट से 20, सो डेफिशिट कितना हो गया 5. ओके, सो डेफिशिट मीन्स एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रिसिप्ट्स. ओके, next is type and its measurement. Okay, we have a 3 type. One is revenue deficit, second is fiscal deficit, and third one is the primary deficit. Okay, one by one we are going to discuss about it. Let's see the revenue deficit. Okay, what is revenue deficit? By the name it has been clear, excess of revenue expenditure over revenue receipt. मैंने अभी आपको बताया है बेटा कि जब एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं, whether it is revenue, whether it is capital, whether any we are talking about. ठीक है, तो excess of revenue expenditure जब इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो it will call revenue deficit. Okay, so what is the formula of it is, formula is revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipts. Okay, earlier we have done also budget expenditure, हमने क्या formula लिखा था, total expenditure minus total receipt. So here we are using revenue expenditure minus revenue receipt. Okay, so I have also used the abbreviation of this formula that revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipts. ओके, या फिर आप कह सकते हैं कि जब खर्चे इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिशिट. अब ये शो क्या करता है, नंबर 1 इट शोज गवर्नमेंट अर्निंग अ इनएफिशिएंट
टू मीट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब है, अब जैसे हमारे अभी यहाँ पर ना आप गवर्नमेंट और प्लस अपने आप को सोच के देखना कि जब हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी क्या होती है, हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लाइफ नहीं चल पाती है। सपोज वी वर हैविंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी था, तो आप अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो सेम एज इट इज़ गवर्नमेंट के साथ हो रहा है। गवर्नमेंट जो है अर्निंग आर इनएफिशिएंट टू मीट नॉर्मल, गवर्नमेंट की अर्निंग इतनी कम है कि वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं चला पा रही है। नंबर 2, डिजॉल्विंग इन द इकोनॉमी। नंबर टू डिजॉल्विंग इन द इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी में वो पैसा जो है वो ख़त्म हो रहा है। हायर रीपेमेंट बर्डन इन द फ्यूचर, अब जैसे हमारे पास इनकम, हमारे खर्चे ज़्यादा हो गए, इनकम कम हो गई, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू बोरो, हम बोरो करेंगे। ठीक है, तो बोरो करेंगे तो व्हाट वुड हैपन इफ वी आर बोरिंग, सो देयर वुड बी हायर रीपेमेंट बर्डन इन फ्यूचर। सेम एज इट इज गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट जब बोरो ज़्यादा कर लेती है तो गवर्नमेंट का रीपेमेंट बर्डन बढ़ जाता है, which leads to inflationary situation in the economy. Now the question arises in your mind, how the inflationary situation is happen in the economy? क्योंकि देखो बेटा, गवर्नमेंट जब बोरो कर रही है, ठीक है, अब नाउ गवर्नमेंट की बोरिंग ज़्यादा हो गई तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट विल इंक्रीज द प्राइजेस। ओके, सो इट मीन्स एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हायर। ठीक है, सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, सो इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। फाइन, क्लियर। सो नेक्स्ट इज द इम्प्लीकेशन मीन्स व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट तो हो गया, उसके इफेक्ट क्या है, अब बिकॉज ऑफ आरडी मतलब रेवेन्यू डेफिसिट। Okay, I didn't get the arrow, so that's why I have used the dash over here. Okay, so because of revenue deficit, अब revenue deficit हो गया मतलब खर्चे इनकम से ज़्यादा हो गए, सो इट लीड्स टू डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन सोशल वेलफेयर। इज इट क्लियर। अब गवर्नमेंट जो है उसके खर्चे ज़्यादा हो गए, इनकम कम हो गई, तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पे खर्चा नहीं करेगी। नाउ यू नो व्हाट इज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडीज और मेकिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो गवर्नमेंट ये सारे खर्चे बंद कर देगी, सो इट विल लीड टू लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट के जो हैं हमारी इकॉनमी में सोशल वेलफेयर खत्म हो जाएगा। नंबर 2, इम्प्लीकेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो गवर्नमेंट रेज फंड बाय बोरिंग। अब दूसरी इम्प्लीकेशन क्या होगी, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा कि गवर्नमेंट को अब खर्चे तो बढ़ गए हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करेगी। ओके, एंड बाय बोरिंग इट विल लीड टू इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, मीन्स गवर्नमेंट का दायित्व बढ़ जाएगा। अब सपोज आपने बोरो किया, ओके, तो अब जब हम बोरो करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है ना, तो सेम एज इट हैपेंस विद द गवर्नमेंट। ओके, एंड विच लीड्स टू लोअर गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ओवर हियर। क्रेडिबिलिटी मीन्स गुडविल। ओके, गुडविल आपने अकाउंट्स में वर्ड सुना होगा, ठीक है। गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी मीन्स आई एम अगेन टेकिंग नॉर्मल एग्जाम्पल ऑफ अ पर्सन। अब जैसे एक पर्सन ने उधार लिया, ठीक है, तो उसकी लायबिलिटी बढ़ गई। नाउ वो अपनी बोरिंग को तो उतार नहीं पा रहा, तो उसकी मार्केट में गुडविल खराब हो जाती है ना। गुडविल मीन्स उसे मार्केट में अब कोई लोन नहीं देगा, बिकॉज नाउ ही इज नॉट हैविंग अ गुड क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट। सो सेम एज इट इज दिस हैपन विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे गवर्नमेंट को आगे फर्दर ऑन गवर्नमेंट को लोन नहीं मिल पाता है। ओके, एंड थर्ड इम्प्लीकेशन इज गवर्नमेंट कंपेल्ड फॉर डिसइन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास उधार ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे, हमारी जो प्रॉपर्टी है उसे बेच देंगे। तो सेम गवर्नमेंट भी यही करती है, गवर्नमेंट सेल इट टू फॉरेन कंपनीज। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है डिसइन्वेस्टमेंट का, कि गवर्नमेंट ने अगर सपोज करिए ये कंपनी या शेयर जो है वो अगर गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज को बेच दिए, तो देयर विल बी मोर कंट्रोल इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय द फॉरेन पीपल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। अब फिर मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। जैसे हमने अगर किसी से बोरो किया है, तो या हमने अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को सेल कर दी है, तो क्या होता है कि दे आर गोइंग टू इंटरफेयर इन आवर लाइफ, कि भाई तुमने तो मेरे से इतने पैसे उधार लिए थे, अब तुम मार्केट में शॉपिंग क्यों कर रहे हो, वाई यू आर रूमिंग अराउंड। तो दिस टाइप ऑफ question arises in the government, in front of the government as well, that people of foreign countries are
going to control our domestic economy. Okay, so next is ways of managing revenue deficit. Okay, अब जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ना उसका पूरे का निचोड़ जो है, okay, you will get it here. Way of managing revenue deficit, how to manage it? By borrowing. Borrow कहाँ से करेंगे? From RBI, from public and from rest of the world. Second, disinvestment. बाय सेलिंग इट्स शेयर बेच दीजिए, तो इससे गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल कर सकती है. और कट इन एक्सपेंडिचर, दैट इज सब्सिडीज इन पर्टिकुलर. स्पेसिफिकली गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करती है, और किस में? सब्सिडीज़ में. गवर्नमेंट सब्सिडीज़ में सबसे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का लगता है, तो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ देनी बंद कर देती है. ओके, सो आई थिंक इट इज़ क्लियर. अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर हमारे ऊपर उधार चढ़ जाता है या हमारे खर्चे इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? बोरो करते हैं. फिर हम दूसरा काम क्या करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी को बेच देंगे. तीसरा काम क्या करेंगे? हम अपने खर्चे पे कम करेंगे. तो सेम एज इट इज़ गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग इन द सेम वे. Next is the fiscal deficit. Fiscal deficit means, firstly we will do the formula. Fiscal deficit. Fiscal deficit is equal to budget expenditure minus budget receipts other than borrowing. Okay, so fiscal deficit is equal to borrowings. Borrowing मतलब उधार लेना. ठीक है, तो एग्जैक्टली देर कैन बी अ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दिस टॉपिक कि फिजिकल डेफिशिट इज इक्वल टू बोरिंग, या फिर आप ये फॉर्मूला यूज करिए. ठीक है, सो फिजिकल डेफिशिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू अदर देन बोरिंग and revenue receipt plus capital receipts other than borrowing. I hope it is clear to you. कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है आपको, बस वो थोड़ा सा फॉर्मूला ऐसा है कि आपको लग रहा होगा कि कन्फ्यूजिंग है. टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू अदर देन बोरिंग है, सिर्फ ये फॉर्मूला है आपका. ठीक है, बट वो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया कि टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ रहा है और टोटल रिवेन्यू में क्या क्या आ रहा है. अदरवाइज योर फॉर्मूला इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू अदर देन बोरिंग, और सेकेंड फॉर्मूला इज FD is equal to borrowing, or another formula is budget expenditure minus budget receipts other than borrowing. Okay, so it shows the estimation of total borrowing by the government, also called gross fiscal deficit. It is expressed as a percentage of GDP. Today I am not talking about the implication of fiscal deficit. Okay, I am teaching you up to here only, just telling you one thing, just keep it in your mind one thing. Fiscal deficit का मतलब होता है that is the expenditure of the government, that is the expenditure of the government of previous year. ठीक है, आपने पहला जो उधार लिया हुआ है, पुराना उधार लिया हुआ है, दैट्स वाई इट्स अ बोरिंग. अब आपको उसको उतारना है ना, तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ फिजिकल डेफिशिएंट. ओके, सो अप टू हियर आई एम टीचिंग यू टुडे, एंड प्लीज इन द कमेंट बॉक्स प्लीज गिव मी द कमेंट whether you like this way or not. If you are not liking this way, I'm again go through the handmade sheets. Okay, thank you students.